ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کی منی پہل کر جاتی ہے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھری شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سے سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے، وہیں وہ ان کی برائی کرنے لگے۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ سنکرانتی تہوار کے بعد سے نئے راشن کارڈ کے لیے درخواستیں حاصل کرنے کا خانوساز کونسل میں ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کا اعلان۔ BRS حکومت نے محض 10 سالوں میں BC طبقے کی تعلیم و ترقی کے لیے کیے بے مثال اقدامات۔ ہر چند روز میں دہلی کا دورہ کرنے والے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کیا کیا؟ MLC کے کویتا کا سوال۔ SDP فنڈ سے
अंजाम दिए जा रहे गैर मियारी तामीरी व तरक्याती कामों की जांच करें और गुत्तेदार पर कार्रवाई करें। इमाम वफद की एससी पंचायत राज से नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। पीर को मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम में 94 शिकायत मौसूल। ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर व दीगर को पेश की दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर मसाइल को फौरी हल करने की ज़िला कलेक्टर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में पीर को मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान 94 शिकायत मौसूल हुई। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर पीर को मुनाकिद होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का फौरी असाला करें। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, DRDO सायरगौड़ और इंचार्ज DPO श्रीनिवास के हमरा कलेक्टर को अपनी दरख्वास्तें पेश की। दरअसल कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर मसाइल को फौरी हल करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान ने शिरकत की। BRS ने अपने 10 साला दौर इख्तिदार में 200 से ज़ायद BC स्कूल्स कॉलेजेस कायम की। तश्कील तेलंगाना से क़ब्ल इलाक़े तेलंगाना में BC गुरुकुल डिग्री कॉलेज का क़याम नहीं था। BRS हुकूमत ने 30 से ज़ायद BC डिग्री कॉलेजेस कायम किए और तलबा को फ़ीस रिएम्बर्समेंट देते हुए तालीम में सहूलतें फ़राहम की। हर चंद रोज़ में दिल्ली का दौरा करने वाले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की बीजेपी सरकार से नुमाइंदगी करते हुए रियासत की तरक्की के लिए क्या किया। असेंबली के सरमाई सेशन में MLC के कविता का सवाल। 10 సంవత్సరాలలో 275 BC పాఠశాలల్ని మరి మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే డిగ్రీ కళాశాలల అధ్యక్ష గురుకుల రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కళాశాలలు కూడా అంతకుముందు ఎన్నడూ లేవు అధ్యక్ష. తెలంగాణ ఏర్పాటు కన్నా ముందు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత 31 BC డిగ్రీ కళాశాలను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అట్లానే అగ్రికల్చర్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ప్రత్యేకంగా బీసీల కోసము అంతకుముందు ఎన్నడూ లేకపోతే కేసీఆర్ గారి హయాంలో 2 కళాశాలను సపరేట్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అట్లానే అధ్యక్ష ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కూడా గత 10 సంవత్సరాలలో ఈ ప్రభుత్వం రాకముందు 14,000 కోట్ల రూపాయలు బీసీ బిడ్డల కోసం ఫీ రియంబర్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. దీంతో 15 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి జరిగింది అధ్యక్ష. నేతన్నలకు ఇప్పటివరకు డిస్కషన్ అయింది అధ్యక్ష. 1,200 కోట్ల రూపాయలను మేము 10 సంవత్సరాల్లో ఇచ్చుకోగలిగినాం. అట్లానే యాదవులకు 5,000 కోట్లు, గౌడన్నలకు 67,000 మందికి అధ్యక్ష మనము పెన్షన్ రూపంలో 2,016 రూపాయలు పెన్షన్ రూపంలో ఇచ్చుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాం అంటే అధ్యక్ష విదేశీ విద్యకు అధ్యక్ష అట్లానే బీసీ విద్యార్థుల విదేశీ విద్యకు కూడా 2,233 మంది పిల్లలు వెళ్ళడానికి 450 కోట్ల రూపాయలని మేము ఖర్చు పెట్టుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే యావరేజ్గా మీరు చూసినట్టయితే కేసీఆర్ గారి హయాంలో ప్రతి సంవత్సరం 27 బీసీ గురుకులాలను మేము ఏర్పాటు చేసినాం అధ్యక్ష. వీరు అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సర కాలం అయింది. ఇంకా కొత్తగా ఏమన్నా గురుకులాలు ఏర్పాటు చేస్తారా అనేటటువంటి ప్రశ్నకు లేదు అని సమాధానం రావడం, అట్లానే ఏర్పాటు చేసేటటువంటి ఆలోచన కానీ కనీసం దాంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసేటటువంటి ఆలోచన కానీ లేకపోవడం నిజంగా దారుణం అధ్యక్ష. దాంతోపాటు గురుకులాల యొక్క క్వాలిటీ పడిపోవడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. రోజు ఫుడ్ పాయిజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు రావడం, అట్లానే కంప్లీట్గా ఈ విదేశీ విద్యకు సంబంధించి మొత్తం పెండింగ్ ఉండడం. గత సంవత్సర కాలంలో అనేకమైన బిల్లులు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు 10,000 కోట్ల రూపాయలు దాదాపుగా పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఇచ్చినామని వాళ్ళే పేపర్లలో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వేసుకున్నారు అధ్యక్ష. మరి బీసీ విదేశీ విద్య చదివేటటువంటి బీసీ విద్యార్థులకు ఎందుకు ఇంతవరకు మరి డబ్బులు ఇస్తలేరో గౌరవ మంత్రివర్యులు చెప్పాలి అధ్యక్ష. संक्रांति के बाद से नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें हासिल करने का ऐलान। तेलंगाना कानून साज कौंसिल वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का जवाब। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए संक्रांति से दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ अरकान कौंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल का वजीर सिविल सप्लाईज ने तफसीली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स के मामले पर काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है और 10 लाख अफराद को नए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा। मजीद ये कि तेलंगाना में जात पात की मरदमशुमारी का अमल जारी है
और संक्रांति के बाद नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें ली जाएंगी। वसी ने वजाहत की कि इन दरख्वास्तों की बुनियाद पर स्मार्ट राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इसके अलावा रियासत में खाली पड़ी राशन डीलर की जगहों को जल्द पुर करने के लिए कलेक्टर्स को पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में नए नामों की शमूलियत भी की जाएगी। निजामाबाद में एसटीपी फंड से गैर मियारी कामों को अंजाम दही की शिकायतों की जांच की जाए। मुतल्लिका एई गुत्तेदार के खिलाफ कार्रवाई करने मजलिस निजामाबाद के कायदीन की एससी पंचायत राज से नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बी भास्कर से तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए रियासती हुकूमत की जानिब से निजामाबाद अर्बन हल्के में तरक्याती व तामीरी कामों को अंजाम देने मंजूरा 10 करोड़ खुसूसी तरक्याती फंड्स एसटीपी से मियारी कामों को अंजाम देने और बाकायदा कामों की निगरानी के जरिए अवामी फंड्स के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने का मुतालबा किया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोतमर टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मजलिस मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, सैयद रफीउद्दीन, मोहम्मद जावेद के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक पर मुश्तमिल वफद ने 10 लाख रुपये एसटीपी फंड से डिवीजन 56 अहमदपुरा कॉलोनी में गैर मियारी कामों की अंजाम दही पर मुश्तमिल खबरों की इशाअत पर एससी पंचायत राज से उनके चैम्बर में मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें बताया कि डिवीजन 56 अहमदपुरा में 10 लाख रुपये से मंजूरा सीसी सड़क की तामीर मुतल्लिका एई की नाक़िस कारकर्दगी से कामों के मियार पर सवालिया निशान बना हुआ है। मुकामी अवाम सड़क की तामीर में डस्ट पाउडर के इस्तेमाल और सीमेंट कम मिलाने पर नाराज है। मज़कूरा कामों की जांच करने, कामों की अंजाम दही के मौके पर मुतल्लिका एई की अदम मौजूदगी, गुत्तेदार की जानिब से मनमानी तरीके पर काम अंजाम देने की शिकायत की। अलावासी इन तरक्याती कामों की जांच मुतल्लिका एई गुत्तेदार की मिली भगत से गैर मियारी काम अंजाम दिए जाने पर कार्रवाई का मुतालबा किया और डिवीजन 30 और 31 में अंजाम दिए गए गैर मियारी कामों के बिलों को रोक दिया जाए। बादजा मोहम्मद शकील अहमद फासिल ने बात करते हुए कहा कि एसटीपी फंड से मियारी तरक्याती कामों की जल्द तकमील के लिए पंचायत राज एससी से नुमाइंदगी की गई। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता 10 सालों से कॉरपोरेशन में अवामी नुमाइंदगी के जरिए शहर बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में मियारी तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। आज शहर के हर गली कोचे में सीसी सड़कों, बीटी सड़कों का जाल बुना हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत खुसूसी फंड से मियारी काम अंजाम दे और अवामी फंड्स का बेजा इस्तेमाल ना हो। कामों की मुतल्लिका महकमे के ओहदेदार मियार की जांच की। इस मौके पर डिप्टी ई पंचायत राज अशोक दीगर भी मौजूद थे। आज निजामाबाद एमआईएम यूनिट सुप्रिटेंडेंट पीआर से मुलाकात करने की वजह ये है कि ये जो एसडीएफ फंड जो है, जो निजामाबाद अर्बन के लिए जो अलाट किया गया, उसके कामों के ताल्लुक से जितना जल्दी हो सकते है वो काम कराइए। और साथ ही साथ हम ये चीज़ पे भी फिक्रमंद है क्योंकि एमआईएम पार्टी गुज़िश्ता 10 साल से निजामाबाद अर्बन में खुसूसन माइनॉरिटी इलाकों में डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ की। अगर उसको बोलना शुरू करें तो बहुत टाइम लगता है। वक्तन फ़क्तन हम आगे आके हमारे अपने डेवलपमेंट भी बताएंगे और डेवलपमेंट भी ऐसा किए, क्वालिटी डेवलपमेंट किए जो आप तमाम के सामने नज़र आ रहा है। आज निजामाबाद माइनॉरिटी एरिया में खुसूसन जहाँ पर बीटी रोड का तस्वुर नहीं होता था, हम बीटी रोड का जाल बिछा दिए, कई सड़क सीसी रोड का जाल बिछाए, बड़े बड़े ड्रेन्स वगैरह बहुत सारे ऐसे काम हुए। हम चाहते हैं कि ये जो फंड आया, ये फंड का भी काम क्वालिटी हो और अच्छा हो, जिसकी वजह से, क्योंकि ये खुसूसी फंड डेवलपमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूंसी के वास्ते दिया गया है, इसलिए गवर्नमेंट का भी काम है कि वो ये जो फंड का बेजा इस्तेमाल ना हो, उस पर नज़र रखें। उस पर नज़र रखने के लिए डिपार्टमेंट के डिप्टी एई जो भी है वो लोग जिम्मेदार होते हैं। गुज़िश्ता रोज जब अखबारों में हम देखा तो ये अखबारात में ये शिकायत दर्ज हुई कि काम क्वालिटी नहीं चल रहा। हम क्वालिटी के काम अगर जो नहीं कर रहा उसको बर्दाश्त नहीं करते। क्वालिटी काम होना ज़रूरी है क्योंकि ये आवाम का पैसा है, आवाम का पैसा रद्द नहीं होना, आवाम का पैसा बेकार नहीं जाना,
काम अच्छा होना, MIM यूनिट हर वक्त इसके पीछे लगी है और अच्छे से अच्छा काम कराई है और कराते रहेगी आगे भी। हम खुसूसन आज एससी साहब से मिले, यही हमारी गुजारिश थी कि ये काम जो हो रहा है पेपरों में आया है और जो डेवलपमेंट काम जो कर रहे हैं वो CC रोड का, उसमें बहुत सारे चीज़ें जो डस्ट और ओनली डस्ट मिला के और सीमेंट की मकदार भी उसमें ज़्यादा नहीं है, इस वजह से प्रॉपरली चेक करते हुए वो काम को रीएस्टिमेट करे और वो काम का बहुत बारीक बीनी से चेक करे ताकि आवाम का पैसा खराब ना हो। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की कामयाब नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट मधु मलंचा हाई स्कूल बोधन में गवर्नमेंट उर्दू टीचर का तकर्रुर अमल में लाया गया, जिस पर मौलाना सैयद समीउल्लाह कासमी सदर जमीयतुल उलमा ने अपने वफद के हमरा हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, जिला कलेक्टर व दीगर कायदीन का किया शुक्रिया अदा। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की कामयाब नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट मधु मलंचा हाई स्कूल बोधन में गवर्नमेंट उर्दू टीचर का तकर्रुर हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हुक्म पर और हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर साहब के मशवरे से हजरत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब कासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने अपने एक वफद के हमरा चंद माह कबल कलेक्टर निजामाबाद से मधु मलंचा हाई स्कूल बोधन में गवर्नमेंट उर्दू टीचर के तकर्रुर की नुमाइंदगी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मधु मलंचा गवर्नमेंट हाई स्कूल में जिला कलेक्टर के हुक्म पर बातारीख 3 दिसंबर 2024 उस्ताद का तकर्रुर अमल में लाया गया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के कारकुनान ने कहा कि MEO बोधन, DEO निजामाबाद, मोहतरम जनाब कलेक्टर साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मुशीर हुकूमत तेलंगाना का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह जिन लोगों ने मुसलसल कोशिश की, जनाब मिर्जा अफजल बेग साहब स्टेट टीचर एसोसिएशन, मोहम्मद सलीम साहब बोधन, अब्दुल वाहिद साहब बोधन, जुनेद अहमद खलील बोधन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन तमाम अहबाब की कोशिशें भी तकर्रुर में शामिल हैं। इस मौके पर हम हुकूमत तेलंगाना को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि उर्दू के मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। इस मौके पर हाफिज अफसर बोधन, अकीलुद्दीन इंजीनियर बोधन, मौलाना अब्दुल नासिर मुफ्ती जुबैर, हाफिज नसीमुल्लाह, हाफिज इब्राहिम इशाती, हाफिज अब्दुल वली मजहरी, हाफिज अरशद, हाफिज अब्दुल मुजीब, मुंतजिम दफ्तर जमीयतुल उलमा, अब्दुल्ला इंजीनियर व दीगर अराकीन जमीयत मौजूद थे। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हुक्म पर और इसी तरह जनाब हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना और आंध्रा के मशवरों से मधु मलंचा गवर्नमेंट हाई स्कूल बोधन में एक उर्दू टीचर के तकर्रुर का मसला था। वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होने के बावजूद उर्दू का उस्ताद मौजूद नहीं था, तो जमीयतुल उलमा ने सदर साहब के हुक्म पर कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की और इस तरफ तवज्जो दिलाई कि वहाँ पर उर्दू टीचर का तकर्रुर अमल में लाया जाए। पढ़ने वाले तलबा की ज़्यादातर तादाद उर्दू पढ़ने वालों की है। बहुत कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है उर्दू उस्ताद उर्दू टीचर का तकर्रुर अमल में आया जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी पर। इस मौके पर हम MEO बोधन नागैया साहब, DO निजामाबाद जनाब अशोक कुमार रेड्डी साहब, इसी तरह कलेक्टर साहब जनाब ताहिर बिन हमदान साहब चेयरमैन उर्दू एकेडमी, जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइज़र हुकूमत तेलंगाना, इसी तरह जनाब महेश कुमार गौड़ साहब PCC तेलंगाना का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन अहबाब ने इस सिलसिले में मुसलसल मेहनत की, जनाब मिर्जा अफजल साहब स्टेट एसोसिएशन टीचर्स एसोसिएशन, इसी तरह मोहम्मद सलीम साहब बोधन और जनाब अब्दुल वाहिद साहब बोधन, जुनैद अहमद खलील साहब, इन अहबाब की भी मुसलसल कोशिश रही और इन कोशिशों के बाद आज जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी पर कोशिशों से ये तकर्रुर अमल में आया है। हम इन अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं, हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो है इस सिलसिले में बच्चों का तालीमी एक साल मुतासिर हुआ, तो हम हुकूमत तेलंगाना से अपील करते हैं कि उर्दू के मसाइल पर पूरी रियासत में जहाँ जहाँ भी उर्दू के तालीमी मसाइल हैं, उर्दू के असातिज़ा के मसाइल हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है हुकूमत इस तरफ ख़ास तवज्जो दे। पिछली हुकूमत ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब इस मौजूदा हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दे
تاکہ وہ طلباء جو اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا نقصان نہ ہو۔ यहाँ लेते एक वक्फा। خواتین وہ دو شیزاؤں کے فیشن کا باعتماد وہ بھروسہ مند نام زمزم سوٹس۔ زمزم سوٹس روبرو وینکٹیشورا ملک سینٹر مرحبا سپر مارکیٹ کے پیچھے نزد بودھن بس اسٹینڈ خلا روڈ نظام آباد۔ آپ کی عید و تقاریب چھوٹے بڑے فنکشن کے لیے ہمارے یہاں خواتین وہ دو شیزاؤں کے دیدہ زیب ملبوسات جو آپ کی پہلی پسند ہوگی اور آپ کو جاذبی نظر بنانے والا سٹاک دستیاب ہے۔ زمزم سوٹس کی خصوصی اسپیشل آفر 5 دسمبر تا 20 دسمبر 1000 روپے 4 پیس کاٹن ڈریس، 1400 روپے 3 پیس ورک ڈریس مٹیریل، 1800 روپے 3 پیس ہیوی ورک ڈریس مٹیریل، 2000 روپے 2 پیس پاکستانی فل ورک ڈریس مٹیریل، 2800 روپے 2 پیس فرشی لہنگا، 3500 روپے 2 پیس رشین پلازو غرارہ، 1300 روپے 2 پیس برقع۔ آفر صرف 5 تا 20 دسمبر، تو جلدی کریں۔ زمزم سوٹس روبرو وینکٹیشورا ملک سینٹر نزد بودھن بس اسٹینڈ خلا روڈ نظام آباد۔ فون نمبر 7981168967 9390414785۔ वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है निज़ाम आबाद की मारूफ शख्सियत मेहमान नवाज जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान की हाई ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा पड़ने से तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। हैदराबाद इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। आमतुल मुस्लिमीन से जल्द सेहत याबी के लिए दुआओं की अपील की जाती है। निजामाबाद की मशहूर वो मारूफ शख्सियत मिर्जा अफजल बेग तेजान सदर मस्जिद अब्दुल्ला मालिक तेजान ट्रेडर बोधन रोड निजामाबाद की तबीयत ज्यादा नासाज है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा पड़ने पर शहर के एक प्राइवेट दवाखाने में भर्ती किया गया था। बाद तशखीस और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टरों ने हैदराबाद मुंतकिल करने की हिदायत की। इलाज की गर्ज से हैदराबाद मुंतकिल किया गया। आमतुल मुस्लिमीन से जल्द सेहत याबी के लिए दुआओं की अपील। अल्लाह अफजल भाई तेजान को जल्द सेहत आजला कामिला अता करें, आमीन। निज़ामाबाद के उभरते हुए कम उम्र क्रिकेट खिलाड़ी पाशा क्रिकेट एकेडमी के स्टार बल्लेबाज अरीब अली ने HCA के वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 123 गेंदों में 165 शानदार रन बनाए, जिसमें 25 बाउंड्री शामिल हैं। निजामाबाद शहर वो जिले में नौजवान और कम उम्र के काबिल क्रिकेट खिलाड़ी की कोई कमी नहीं। उन्हीं में से एक कम उम्र क्रिकेट खिलाड़ी है अरीब अली। अरीब अली अंडर 14 क्रिकेट टीम निजामाबाद के कप्तान और पाशा क्रिकेट एकेडमी के स्टार बैट्समैन हैं। अरीब अली ने आज हैदराबाद में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के ज़ेरे एहतमाम मुनक़दा वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शायकीन का दिल जीत लिया। अरीब अली ने महज 123 गेंदों में 165 रन बनाए। शानदार बल्लेबाजी पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया और मुबारकबाद दी। CPM ने मुतालिबा किया कि शहर के धरना चौक पर जहां अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज किया जाता है वहां बेहतर सहूलियात फ्राहम की जाए। CPM पार्टी ज़िला कमेटी ने अवामी मसाइल के हल के लिए ज़िला कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। CPM पार्टी जिला कमेटी ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को तहरीरी याददाश्त पेश की। बादशाह जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को हल करे। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि हुक्काम पुलिस के जरिए कंट्रोल कर रहे और कलेक्ट्रेट के करीब एहतजाज किए बगैर एहतजाज करने वालों को नोटिस दे रहे। ताहम माजी में जिला कलेक्टर ने कदीम कलेक्ट्रेट के सामने एक धरना चौक मख्तस किया था, लेकिन उसे सहूलियात के बगैर 4 दीवारी के दरमियान कैद कर दिया गया था और अवाम का एहतजाज किसी को नजर नहीं आता था। ताहम उन्होंने मुतालिबा किया कि इस जगह को बराबर किया जाए और अवाम को पीने के पानी की सहूलत फ्राहम की जाए।
और एहतजाज के लिए एक शीट भी बनाया जाए। अगर नहीं तो उन्होंने कहा कि अवाम को कलेक्ट्रेट पर एहतजाज करने का मौका दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुक्काम ने फौरी मदाखलत करते हुए सहूलियात फराहम न की तो मुख्तलिफ सियासी जमातों को अवामी अंजुमनों की सरपरस्ती में एहतजाज करना पड़ेगा। इस मौके पर पी वेंकट रामलू, नूरजहां, CPM जिला सेक्रेटरी, ग्रुप के दीगर अरकान भी मौजूद थे। ఆంక్షల్ని విధించడంతో ఈరోజు ప్రజలు తమ సమస్యల్ని చెప్పుకోవడానికి కలెక్టరేట్కు వచ్చి తమ నిరసనను వ్యక్తం చేసేటువంటి అవకాశం లేకుండా జిల్లా అధికారులు పోలీసు యంత్రాంగం ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. నిరసన వ్యక్తం చేయడానికి పాత కలెక్టరేట్ ఎదురుగా ఈ ధర్నా చౌక్ను నిర్ణయం చేశామని సంవత్సరం అవుతా ఉన్నది చెప్పి, కానీ ఇంతవరకు అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకుండా ఈరోజు ప్రజల్ని 4 గోడల మధ్య బంధించే పద్ధతుల్లో ఆ ధర్నా చౌక్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రభుత్వం అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు వెంటనే జోక్యం చేసుకొని ఆ ధర్నా చౌక్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు, తాగునీరు కానీ, మూత్రశాలలు కానీ, అట్లాగే ఒక షెడ్ కానీ ఏర్పాటు చేయాలని, అంతవరకు జిల్లా కలెక్టరేట్ దగ్గర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైనా నిరసన కార్యక్రమాలు ఉంటే అవి వ్యక్తం చేయటం కోసం ప్రజలు తమ అభిప్రాయాల్ని, తమ సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి, అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోయే పద్ధతుల్లో సౌకర్యాల్ని కల్పించాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి ఈరోజు CPM పార్టీగా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వటం జరిగింది. వెంటనే ప్రభుత్వం అధికారులు ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించి इस माह की 19 तारीख को आशा वर्कर्स की उजरत में इजाफा और मसाइल के हल के लिए रियासत गिर बस जाता का इनेकाद। इस यात्रा में आशा वर्कर्स बड़े पैमाने पर शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां का बयान। इस माह की 19 तारीख को जिले में आशा वर्करों के जरिए शुरू की गई बस जाता के बारे में पीर को DMHO को एक अर्जी पेश की। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि आशा वर्कर्स के मसाइल को लेकर जारी रियासती बस जाता 19 दिसंबर को निजामाबाद जिले आएंगी। तमाम आशा वर्कर्स से दरख्वास्त की कि वो जिला भर में बड़े पैमाने पर शिरकत करें और इस रियासती बस जाता को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बिला मुआवजा काम को तस्लीम नहीं करती। उन्होंने झंडी दिखाई कि रियासती हुकूमत बहुत से काम बगैर इनाम के अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से काम के भारी बोझ की वजह से आशा वर्कर्स की जिंदगी उजड़ रही, जिसकी वजह से किए गए काम का कोई सिला नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द किए गए तमाम कामों पर गौर किया जाए और बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक मुआवजे को बढ़ाकर 18,000 रुपये तक मुकर्ररा तनख्वाह मुकर्रर की जाए। ఇందిరా పార్క్ లో ఉంటుంది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇదే నెల 19వ తారీఖు నాడు చేరుకుంటా ఉంది బస్సు జాత. ఈ బస్సు జాత ముఖ్య ఉద్దేశం ఆశాలకు ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇవ్వాలని, ESI PF సౌకర్యం కల్పించాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, దాంతో పాటు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని, వారసత్వం కొనసాగించాలని, ప్రమోషన్లు కల్పించాలని ఈ సమస్యల మీద జాత కొనసాగుతా ఉంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే సర్కారు అధికారంలో రాకముందు ఆశాలకు ఫిక్స్డ్ వేతనం అమలు చేస్తా అని చెప్పింది. ఈ రోజు వరకు 11 నెలలు అవుతున్నా అమలు చేయట్లేదు. ఇప్పటికైనా ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగే బడ్జెట్ సమావేశాలలో ఆశాలకు 18,000 ఇస్తామనేది ప్రకటించాలనేదే CITUగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రత, ESI PF సౌకర్యాల మీద జరుగుతున్న జాతను ప్రజలందరూ ఆదరించాలి. ఆశా వర్కర్లందరూ జయప్రదం చేయాలనేదే CITUగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। संक्रांति त्योहार के बाद से नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें हासिल करने का खानसास काउंसिल में रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान। BRS हुकूमत ने महज 10 सालों में BC तबके की तालीम व तरक्की के लिए किए बेमिसाल इक़दाम। हर चंद रोज में दिल्ली का दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने क्या किया? MLC के कविता का सवाल। SDP फंड से
अंजाम दिए जा रहे गैर मियारी तामीरी व तरक्याती कामों की जांच करें और गुत्तेदार पर कार्रवाई करें। इमाम वफद की एससी पंचायत राज से नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।